Hello students, how are you today? I hope you all are fine. Today we will continue our chapter 3rd, human reproduction. Yesterday we have discussed about the brief introduction of reproduction as well as discussion about developmental periods, phases of embryonic development, etc. I hope you remember. Students, today we will discuss about the human reproductive system. We will discuss separately the human female reproductive system as well as the human male reproductive system. ठीक है जी. तो before starting the systems, let us have some brief introduction about the human reproductive system. Students, man or human being is a unisexual. Man is a unisexual. Human reproduction. Human being is a unisexual and reveals distinct sexual dimorphism. Sexual dimorphism. Sexual dimorphism. What is sexual dimorphism? Sexual dimorphism means in which male and female are physically different from each other in physical standards, external genital organs as well as sex characters. ठीक है जी. The male and the female reproductive system consist of tissues, organs that both participate in creating a new human being. And each system has a highly specific functions that allow it to complement the other perfectly. हर एक सिस्टम में मेल में और फीमेल में हर एक ऑर्गन का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, मैच करता है मेल और फीमेल दोनों में. मतलब बोथ सिस्टम्स हैव द सेम गोल. गोल क्या है दोनों का? टू ज्वाइन अ स्पर्म और अ मेल गैमेट विद द female gamete, that is egg, in the female's body that enables the fertilized egg to become an individual. जिसकी वजह से वो एग क्या है? एक इंडिविजुअल का रूप ले लेता है. ठीक है जी. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ईच सेक्स ऑफ मैनी ऑर्गन्स. दोनों का सिस्टम है जो दोनों में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. ठीक है जी. दे आर डिस्टिंग्विशेबल इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. सेकेंड इज वासा इफ्रेंशिया. वासा इफ्रेंशिया. Third is a pair of epididymis. A pair of epididymis. And fourth is vasa differentia. Vasa differentia. Fifth is ejaculatory duct. Ejaculatory duct. Next is urethra. Urethra. Penis and certain glands, certain accessory glands. Briefly we will discuss brief functions of this, then we will switch over to the longitudinal section of the male testes. First we will discuss these functions of. हाँ जी. फर्स्ट इज पेयर ऑफ टेस्टिस. हाँ जी. टेस्टिस आर situated in a bag-like structure known as scrotum, present outside the body.
These are a pair of testes present in a scrotum outside the body. Students, here one question came of 1 mark or 2 mark. Why pair of testes are present outside the body? Testes are present outside the body because the outer temperature, that is 2 to 3 degree less than the inside of the body, that is suitable for the formation of sperms. That is why testes are located outside the body. तो testes क्या है? Pair of testes where sperms are formed. Sperms are formed. ठीक है जी. Next is vasa efferentia. Listen, one more function of testes. One is they produces sperm. Second is they releases the hormone known as the testosterone. They releases the hormone known as testosterone. ये हार्मोन भी रिलीज करती हैं टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? इट इज यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द जेनिटल ऑर्गन्स एंड ऑल्सो टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ठीक है जी. एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए मैन फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स. ठीक है जी. टेस्टिस प्रोवाइड suitable temperature for the formation of the sperms. They are located in the scrotum. Next है जी vas efferentia. Vas efferentia is a pair of ducts. These are a pair of ducts that joins with the rete testes. And this rete testes join with the epididymis. With this vas efferentia, sperms move in this ducts. From testes to vas efferentia, then to rete testes. Rete testes is connected to the epididymis. Honey, what is epididymis? Epididymis is a coiled tube-like structure. It is a coiled tube-like structure. Here the sperms stores temporarily. Next, vas differentia. Vasa differentia or vas deferens singular. The epididymis continues. This is continues to form the vas differentia. The vas deferens joins the seminal vesicle. What is seminal vesicle? Seminal vesicle is accessory gland. ठीक है जी. And form the ejaculatory duct. This ejaculatory duct opens into the urethra. And these form the duct that helps in carrying the sperms. And what is urethra? Urethra is a common passage for urine and sperms. The urethra starts from the urinary bladder and extends through the penis to the external opening called the urethral meatus. It is the external opening in the man. ठीक है. Urethra carries sperm outside the body through the penis. Now what is penis? Penis is a long and thick muscular organ. It is richly supplied with the blood vessels. It is made up of erectile tissue. ठीक है जी. It is made up of erectile tissue. Its tip is broad, sensitive, and is called the glans. It is covered by loose, retractable tissue that is known as the foreskin. And what is the function of the penis? Penis acts as a copulatory organ and is also used for passing out urine. ठीक है जी. It helps in transporting sperms in the female genital tract during copulation for reproduction. ठीक है. Honey, next is accessory glands. Accessory glands. There are 3 accessory glands. First is seminal vesicle.
Seminal vesicles. These seminal vesicles are a pair of thin-walled muscular sacs. They secrete a viscous alkaline fluid. They secrete viscous alkaline fluid. And that fluid contains fructose. That fluid contains fructose, proteins, and other chemicals. That are helpful in the nourishment of the developing sperms. Second gland is prostate gland. हाँ जी students, prostate gland is a single pyramidal like gland that is present in the region where urethra and the ejaculatory duct meet. That is present in the region where urethra and ejaculatory duct meet. जहाँ पे दोनों वो मिलती हैं, ये वहां पे प्रेजेंट होता है. ठीक है. थ्रू स्मॉल डक्ट्स प्रोस्टेट ग्लैंड पोर्स इट्स सिक्रीशन इनटू द यूरिथ्रा. तो ये है जो प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अपनी सिक्रीशन को यूरिथ्रा में डालता है. ठीक है जी. तो वो सिक्रीशन क्या होती है? इट इज थिक मिल्की alkaline fluid which is released into the urethra along with the secretion of this seminal vesicle. The secretion of prostate gland neutralizes the urine in the urethra and it also provides nutrition for the developing sperms. ठीक है जी. थर्ड ग्लैंड इज बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड. or we can say Cowper's gland. These are a pair of glands that open into the urinogenital tract. They secrete fluid that is alkaline. This secretion neutralizes the acidity and lubricates the urinogenital tract. ठीक है जी. तो lubricate करता है urinogenital tract को. तो ये जो बल्बोयूरिथ्रल का सिक्रीशन है, इट हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस. ऑल्सो. ठीक है जी. स्टूडेंट्स, टू थिंग्स you must have to know about it. One is sperms and the second is semen. Before switching over to the reproductive systems, we must know about it. Sperms. What are sperms? Sperms are special tiny haploid cells with tails which help them to move towards a female sex cell. स्पर्म्स क्या होते हैं? छोटे छोटे हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जिनकी टेल होती है. वो टेल उनको फीमेल एग तक मूव करने में हेल्प करती है. स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन लार्ज नंबर इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं और एक्सेसरी डक्ट्स उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं. तो ये जो स्पर्म्स होते हैं, दे कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मेल पेरेंट से फीमेल पेरेंट मतलब गैमेट तक लेके जाती हैं, उस गैमेट तक जिसको फीमेल पेरेंट ने प्रोड्यूस किया है. ठीक है जी. दे कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेल पेरेंट टू द गैमेट ऑफ फीमेल पेरेंट. नाउ कम ऑन द सीमन. व्हाट इज सीमन? द सिक्रीशन ऑफ सेसरी ग्लैंड्स. इन तीनों की जो सिक्रीशन है, ठीक है जी, वो टुगेदर तीनों को मिला के जो सिक्रीशन बन जाती है, दैट इज नोन एज अ सीमन. तो ये सिक्रीशन, ये सीमन कैसा होता है? इट इज मिल्की विस्कस अल्केलाइन fluid ejaculated by the males. The alkalinity of the semen. ये जो alkalinity होती है, नेचर होती है इसकी, वो क्या करती है? It neutralize the acidity of male urinogenital tract and also vagina. वजाइना में जो केमिकल्स सिक्रीशंस होती हैं, जैसे मेल में जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है वो सेम है, वहीं से ही स्पर्म्स मूव करते हैं, सीमन मूव करता है और वहीं से ही यूरिन पास आउट करता है. तो यूरिन की वजह से वहां पे जो एसिडिटी क्रिएट हो जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो सीमन है वो होता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है. सीमन ऑल्सो कंटेन्स फ्रक्टोज एंड वेरियस केमिकल्स फॉर द नरिशमेंट एज वेल एज द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म.
इसी सीमन में बहुत फ्रक्टोज भी होती है और बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं जो स्पर्म की मोटेलिटी मीन्स उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 4 ml ऑफ सीमन इज डिस्चार्ज एट वन टाइम एंड विच कंटेन्स अराउंड 3 to 400 millions ऑफ स्पर्म्स। ठीक है जी। नाउ देयर इज ए क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द स्पर्म्स एंड द सीमन। हाँ जी, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स द longitudinal section of mammalian testes। ठीक है जी, longitudinal section of mammalian testes। First we will discuss about the protective coats। These are the protective coats। ये जो है ये हमारे protective coats हैं testes के। A testis is enclosed in a dense fibrous coat called tunica albuginea। This is tunica एल्बुजीनिया। ठीक है जी। ट्यूनिका एल्बुजीनिया क्या है? प्रोटेक्टिव कोट है जो फाइब्रस डेंस फाइब्रस कोट है। ठीक है जी। ट्यूनिका एल्बुजीनिया। लाइनिंग दिस कोट इज अ थिन ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इसके अंदर ये जो मैंने डॉटेड शो की हुई है ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा है। इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विद अबंडेंट ब्लड वेसल्स। आउटसाइड द ट्यूनिका एल्बुजीनिया। ट्यूनिका एल्बुजीनिया के बाहर क्या है हमारे पास? ट्यूनिका एल्बुजीनिया के बाहर मोस्ट ऑफ द टेस्टिस इज द विसरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम इज नोन एज द ट्यूनिका वेजिनेलिस। ये पूरी टेस्टिस में ऑलमोस्ट सारी टेस्टी में ये ट्यूनिका वेजिनेलिस है। दैट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। ठीक है जी। दीज आर ए पार्ट ऑफ स्क्रोटल सैक। दीज आर ए पार्ट ऑफ स्क्रोटल सैक इन द व्हेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेस्टिस। तो मैंने आपको बताया था टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम। ठीक है जी। और ये ट्यूनिका वेजिनेलिस इज ए पार्ट ऑफ द स्क्रोटम। ठीक है जी। दीज टेस्टिस लाइज आउटसाइड द सीलोम इन द स्क्रोटल सैक। तो ये सारी टेस्टिस उस स्क्रोटल सैक के अंदर पड़ी है जी। 3 लेयर्स मैंने आपको करवाई हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका वेक्सुलोसा, ट्यूनिका एल्बुजीनिया। ट्यूनिका वेस्कुलोसा क्या है? ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। ट्यूनिका एल्बुजीनिया इज ए फाइब्रस कोट प्रेजेंट आउटसाइड द ट्यूनिका वेक्सुलोसा एंड ट्यूनिका वेजिनेलिस इज अ outer two coverings that are connected with the scrotum sac or scrotal sac। ठीक है जी। नाउ अब हम इसके अंदर चलते हैं। ठीक है जी। इन ग्रोथ्स ऑफ दीज ट्यूनिका एल्बुजीनिया। इसी ट्यूनिका एल्बुजीनिया, ये ट्यूनिका एल्बुजीनिया है जो ये आगे जाके ये देखिए यहाँ पे जाके क्या हो रही है, इस एक सेप्टा बना रही है। ये ब्राउन कलर के जो सेप्टा से बना रही है, मतलब अलग अलग सेप्टा बना रही है। दीज सेप्टास डिवाइड द टेस्टी इनटू लोब्यूल्स। तो हर एक क्या बन गया? लोब्यूल बन गया। तो ये टोटल हमारी टेस्टिस के अंदर कितने लोब्यूल्स होते हैं? 200 से लेके 300 तक लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल बोलते हैं हम इसको। एक लोब्यूल, 2, 3 और मैंने यहाँ सिर्फ 4 बनाए हैं, बट दे आर 200 to 300 लोब्यूल्स एंड ईच लोब्यूल। तो इस ईच लोब्यूल में क्या है? हाईली कन्व्यूलेटेड सेमनीफेरस टिब्यूल्स पड़े हैं। ठीक है जी। हाईली बहुत ही ज्यादा कन्व्यूलेटेड सेमनीफेरस टिब्यूल्स पड़े हैं, ब्लड वेसल्स पड़ी हैं, नर्व्स पड़ी हैं जो इसके लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पड़े हैं। द एंड्स ऑफ द सेमनीफेरस टिब्यूल्स कन्वर्ज टुवर्ड्स द मिडल पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। ये यहाँ से निकल के क्या कर रही हैं? यहाँ पे आके हर एक एंड यहाँ पे आके ये क्या बना रहा है? टिब्यूला रेक्टी। हर एक एंड इनका सेमनीफेरस टिब्यूल्स का निकल के क्या बना रहा है? टिब्यूला रेक्टी। दिस इज द टिब्यूला रेक्टी। द टिब्यूला रेक्टी ओपन इनटू ए नेटवर्क ऑफ। तो ये जो टिब्यूला रेक्टी है, इट इज ओपन इनटू ए नेटवर्क ऑफ वाइडर इररेगुलर टिब्यूल्स नोन एज रेटी टेस्टिस। ये देखिए, ये जो है ये रेटी टेस्टिस है, ये यहाँ पे ओपन हो रही हैं। टिब्यूलर रेक्टी है ये पूरी,
और ट्यूबुलर रेक्टी आगे जाके किस में ओपन हो रही है, रेटी टेस्टिस में। दिस इज द रेटी टेस्टी, ये रेटी टेस्टी है, ठीक है जी। ये जो बीच में आपको जगह खाली दिखाई दे रही है। देन here some of the epithelial cell bear single cilium to aid sperm transport। इसके अंदर जो सेल्स हैं, इसका जो सरफेस है वो सिलिया से बना हुआ है। इसके अंदर सिलिया प्रेजेंट है। सिलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, ठीक है जी, दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म। तो पहले हम सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बात करते हैं। ईच, हम इसके बारे में कंसीडर करते हैं। ईच सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। हर एक ये जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है अंदर से ये जर्मिनल एपिथेलियम का बना हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ दीज एपिथेलियम आर क्यूबॉइडल। जो मेजॉरिटी है इसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम की, वो क्या है, दे आर स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। क्यूबॉइडल शेप के हैं तो उनको हम स्पर्मेटोजेनिक सेल्स बोलेंगे। बट अ फ्यू आर लार्ज, इनमें से कुछ पिरामिड शेप के हैं जो इन क्यूबॉइडल सेल्स से बड़े हैं, तो उनको हम बोलेंगे सर्टोली सेल्स। दे आर सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। क्यूबॉइडल सेल्स हैं जो, जिनको मैंने स्पर्मेटोजेनिक सेल्स बोला था, वो डिवाइड करेंगे। दे डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन्स। माइटोटिक डिवीजन्स करने के बाद स्पर्मेटोजेनिक सेल्स डिवाइड करेंगे। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन्स। माइटोटिक डिवीजन के बाद, वो डिवाइड करने के बाद स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे जी, ठीक है जी। ये स्पर्मेटोगोनिया जो यहीं पे ही बनेंगे, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में ही बनेंगे। द स्पर्मेटोगोनिया, यही स्पर्मेटोगोनिया दे ग्रो इनटू स्पर्मेटोसाइट्स। छोटे छोटे स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे बट विदाउट मियोसिस, सॉरी, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज मियोसिस। इनमें मियोसिस होगा जो क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होंगे, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, फर्स्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड देन स्पर्मेटिड्स। वो जो स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं, ठीक है जी, हैप्लॉइड सेल्स बने हैं, तो पहले वो प्राइमरी कंडीशन में होंगे, फिर ग्रो करेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन दे ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्मेटाइड्स, ठीक है जी, स्पर्मेटिड्स। देन लेटर मेटामॉर्फोसिस इनटू स्पर्मेटोजोआ। उसके बाद वो चेंज हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में। Then differentiation of spermatozoa from the spermatogonia is called the spermatogenesis। तो स्पर्मेटोजोआ जब स्पर्मेटोगोनिया में चेंज हो रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या है हमारी, स्पर्मेटोजेनेसिस। मैच्योर स्पर्मेटोजोआ लाई फ्री इन द कैविटी ऑफ द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे, यहीं पे होंगी ये सारी प्रोसेस जो मैंने अब तक बोली है, जो यहीं पे होंगी। जब वो स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे तो यहाँ पे ही वो फ्री मूव करेंगे, ठीक है जी। दूसरा करवाए थे मैंने आपको सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स क्या हैं, ये पिरामिडल शेप सेल हैं जो क्यूबॉइडल सेल्स से कुछ बड़े हैं। दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। ये जो स्पर्म में जो सारी प्रोसेसेस हुई हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से स्पर्मेटोजोआ, उस टाइम जो नरिशमेंट दे रहे हैं वो कौन है, वो सर्टोली सेल्स हैं। इसके साथ साथ सर्टोली सेल्स आल्सो सिक्रीटिंग एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। What is that androgen binding protein? It concentrates the seminiferous tubules and play a role in spermatogenesis। तो ये क्या करेगा, ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ज्यादा मतलब डिवाइड करने के लिए हेल्प करेगा, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगी। थर्ड क्या है, सर्टोली सेल्स आल्सो सिक्रीट्स इनहिबिन प्रोटीन विच स्प्रेसेस। वो इनहिबिन प्रोटीन क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीज को स्प्रेस करेगा, ठीक है जी। अगर वो स्प्रेस होगा तो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस रेगुलेट होगा, ठीक है जी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग अगर स्प्रेस होगा तो हमारा वो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस आगे चलेगा। थर्ड है जी इंटरस्टिशियल सेल्स। तो उन्हीं पिरामिडल सेल्स के बीच में कुछ पॉलीगोनल सेल्स भी पड़े होते हैं।
दैट आर नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल्स। ये जो होते हैं दे लाई इन द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन बिटवीन द सेमनीफ्यूरस टिप्यूल्स। इसके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे पड़े हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। तो इंटरस्टिशियल सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? एंड्रोजन। तो एंड्रोजन क्या करता है? एंड्रोजन हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनटू द ब्लड। ठीक है जी, वो एंड्रोजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है, वो सीधा ब्लड में जाता है। एंड एंड्रोजन क्या करते हैं? दे डेवलप द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स। व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स? Appearance of beard, mouth stitches, and hair on the chest, change of voice. These are the secondary sexual character, and muscular body. These are the secondary sexual character in the males. ठीक है जी, this is the section of the testes. In the next, we will switch over to the next part, that is urethra, body of epididymis and duct of epididymis. Today we have discussed just this part. तो इस पार्ट को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, उसके बाद हम इस पार्ट को रिवाइज करेंगे। ठीक है जी, वासिफरेंशिया, बॉडी ऑफ एपिडिडमस एंड डक्ट ऑफ एपिडिडमस। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताए हैं? 3 तरह की सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, सर्टोली सेल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है जी, जो कहाँ से बने हैं? खुद इसी के टिश्यू से बनते हैं। तो तीनों के अलग अलग फंक्शंस, स्पर्मेटोजेनिक के फंक्शन, सर्टोली के फंक्शंस और एंड्रोजन के फंक्शन, मींस इंटरस्टिशियल के फंक्शन। इंटरस्टिशियल सेल्स आर आल्सो नोन एज द लेडिग सेल्स। ठीक है जी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।